کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج پھر میں لائی ہوں آپ کے لیے ایک بہت ہی مزیدار کہانی۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ بابا، میں نہیں آ رہی پاکستان، اس نے تیوری چڑھا کر کہا تھا۔ بیٹا ضد نہیں کرتے، خاندان میں سب کے ساتھ تمہارا موجود ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بابا نے سمجھانے کے انداز سے بتایا تو وہ انہیں دیکھنے لگی۔ بابا، میں پاکستان آئی تو آپ کے وہ ان پڑھ خاندان والے مجھے واپس پڑھنے کے لیے لندن نہیں آنے دیں گے۔ میں بالکل نہیں آ رہی پاکستان، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ میں پرومس کرتا ہوں صرف خاندان میں شرکت کر لو، پھر میں تمہیں خود واپس پڑھنے کے لیے بھیج دوں گا۔ انہوں نے اس کی بات مانتے ہوئے مصلحت اختیار کی تو وہ انہیں پرسوچ نظروں سے دیکھنے لگی۔ پرومس؟ اس نے انگلی اٹھا کر انہیں دکھائی تو انہوں نے بھی اپنی انگلی اٹھا کر اسے دکھا دی کہ واقعی وہ پرومس کر رہے تھے کہ وہ اس کی بات مان جائیں گے، لیکن وعدہ کرتے وقت انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ مستقبل کی کسی کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ وہ مطمئن انداز سے مسکرا دی۔ وہ بڑی مشکل اور منت سماجت کے بعد پڑھنے لندن آئی تھی۔ 2 سال ہی ہوئے تھے، ابھی اسے اپنی ڈگری مکمل کرنی تھی۔ خاندان والوں کی اس کے باپ نے خوب مخالفت سہی تھی، لیکن کبھی اپنی بیٹی کو کسی کام سے نہیں روکا تھا۔ ان کے مطابق اس زمانے میں لڑکیوں کو بہت آگے جانا چاہیے، اس لیے وہ قندیل کو کسی کام سے نہیں روکتے تھے، لیکن اب خاندان والے اس سے ملنا چاہتے تھے۔ بڑی سی حویلی میں خاص ان کے لیے دعوت رکھی گئی تھی۔ قندیل نے آنے سے انکار کرنا تھا، انہیں معلوم تھا، اور اس نے کر بھی دیا تھا، لیکن انہیں ایک بات معلوم تھی کہ وہ اسے منا لیں گے۔ کیا تم پاکستان جا رہی ہو؟ وہ شوق نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، بابا نے بلایا ہے، 1 ہفتے کی بات ہے، پھر واپس آ جاؤں گی، اس نے مسکرا کر بتایا۔ اس کے مسکرانے سے اس کے دونوں گالوں پر ڈمپل نمایاں ہوئے۔ میں تمہاری بنا کیسے گزارا کروں گا؟ قندیل، وہ اس کا نام ٹھیک سے نہیں لے پاتا تھا، ہمیشہ انگلش انداز سے اس کا نام لیا کرتا۔ میں واپس آ جاؤں گی، شادی کرنے تھوڑا ہی جا رہی ہوں کہ پیا کے گھر کی ہو جاؤں گی۔ وہ ہنس کر گویا ہوئی۔ پلیز میرے علاوہ کسی سے شادی مت کرنا، تم جانتی ہو نا میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں، اس نے مسکرا کر پوچھا تو قندیل نے سر ہلا دیا۔ جانتی ہوں، اسی لیے واپس یہیں آؤں گی۔ اب میں نے پاکستان سے تعلق تو بالکل ختم کر دیا ہے نا، اور نہ ہی وہاں شادی کروں گی، نہ ہی ڈگری مکمل ہونے کے بعد رہوں گی، لیکن ابھی سے اپنا پلان سب کو بتا دیا تو جانتے ہو نا مجھے واپس نہیں آنے دیں گے وہ لوگ۔ اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا تھا جس پر ولیم نے سر ہلایا۔ جانتا ہوں، تم میری گرل فرینڈ ہو اور جلد ہی میری بیوی بھی بن جاؤ گی، اس کا اطمینان اپنی طرف سے قائم تھا۔ میں تمہاری گرل فرینڈ نہیں ہوں، ہم صرف کلاس فیلو ہیں، اور جب تک شادی نہیں ہوگی، جب تک تم میرے مذہب کے رنگ میں نہیں رنگ جاتے، اس نے سختی سے جتایا تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ہاں معلوم ہے مجھ سے روز فون پر بات کرنا، مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں کال کروں تو نظر انداز مت کرنا، اس نے ہدایات دی تو وہ اسے سنے گئی۔ 1 سال سے وہ دونوں اچھے دوست تھے، ان کا یونی میں پورا ایک گروپ تھا، اس میں زیادہ تر پاکستانی ہی تھے۔ ولیم واحد انگریز تھا۔ قندیل ہاسٹل آنے کے بعد پاکستان جانے کی تیاری کر رہی تھی، ٹکٹ اس کے بابا نے کروا دیے تھے۔ میر خان حویلی بہت پرانی اور وسیع حویلی تھی، اس کی در و دیوار نے پشتوں کا بوجھ اٹھایا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس حویلی کی شان میں مزید نکھار آتا گیا۔ بہت سارے کمرے اور بڑے صحن پر مشتمل اس حویلی میں پورا ایک گاؤں آ سکتا تھا، لیکن وہاں دادا جان اور ان کے 2 بیٹے رہتے تھے۔ سہراب میر خان کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا جعفر میر خان تھے، ان کی بیگم اور ان کے 2 بیٹے، سب سے بڑا شہباز میر خان اور اس سے چھوٹا دانیال میر خان۔ سہراب میر خان کے دوسرے بیٹے سمیر میر خان اور ان کی زوجہ سے 2 بیٹیاں تھیں، گل رانا اور گل نشین۔ وہ دونوں حویلی میں ہی ہوتی تھیں، ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ بیٹا پیدا نہ کرنے پر ان کی بیوی کو جوتے کی نوک پر رکھا جاتا تھا۔ ان سے چھوٹے بیٹے صادق میر خان کی 2 بیٹیاں تھیں، ثنا اور قندیل۔ ثنا ڈاکٹر تھی اور ہاسپٹل میں جاب کرتی تھی،
جبکہ قندیل اپنی ڈگری کے لیے لندن گئی ہوئی تھی۔ حویلی کے رواج دیکھ کر صادق میر خان نے حویلی سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو بیٹا نہ ہونے پر ذلیل و خوار ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کی پرورش بیٹوں سے بڑھ کر کی تھی۔ سہراب میر خان کے لیے یہ انا کا مسئلہ تھا، لیکن وہ دور ہونے کے سبب اپنے تیسرے بیٹے کو لگام نہیں لگا سکے۔ سب سے چھوٹا بیٹا طیب میر خان کے ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ ان کی زوجہ سب سے چھوٹی بہو تھی، لیکن دوسرے گاؤں میں رہتے تھے۔ طیب میر خان کے ساس سسر کی طبیعت ناساز رہتی تھی، جس کے سبب انہوں نے اپنے سسرال میں ہی ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ اصل مقصد ان کا یہی تھا کہ ان کے ساس سسر کی بہت زمینیں تھیں اور ان کی بیوی اکلوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کے کہنے میں حویلی سے الگ ہو گئے۔ سہراب خان نے اس بات پر کوئی جھگڑا نہیں کیا کہ اس میں ان کے بیٹے کا ہی فائدہ تھا۔ اصل مسئلہ انہیں صادق میر خان سے تھا، جن کی دونوں بیٹیاں شہر کے رنگ میں رنگ گئی تھی۔ 23 سال بعد سہراب میر خان خود اپنے بیٹے کے گھر آئے تھے اور انہیں دعوت دے کر گئے تھے کہ ساتھ قندیل کو بھی لازمی حویلی آنے کا حکم ملا تھا۔ وہ حویلی جانے سے ڈرتی تھی، کہیں اس کے دادا بابا کو منا کر حویلی نہ روک لیں، اور پھر وہ کیسے سب کچھ حاصل کر پائے گی۔ اس کی سوچ یہی تھی جس کی وجہ سے وہ حویلی جانے سے اعتراض برتتی تھی، لیکن اب جانا ضروری ہو گیا تھا۔ آج کل بڑی تیاریاں چل رہی ہیں، خیریت ہے؟ شہباز خان نے اپنی ماں سے پوچھا، جو حویلی کا ایک ایک کونا ملازموں سے صاف کروا رہی تھی۔ حویلی میں ابا جی نے دعوت رکھی ہے، تمہیں نہیں معلوم؟ صادق چچا اور ان کی فیملی بھی آ رہی ہے۔ اس کی ماں نے جواب دیا تو وہ حیران ہوا۔ دادا جی کو ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی جو شہری لوگوں کو یہاں بلا رہے ہیں؟ سنا ہے بڑی پڑھی لکھی ہیں ان کی بیٹیاں۔ اس نے سیب کاٹتے ہوئے کہا تو اس کی ماں نے سر ہلا دیا۔ قندیل تو لندن ہی ہوتی ہے، اس سے بڑی والی ڈاکٹر ہے، انہوں نے سوچتے ہوئے بتایا۔ شہباز خان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ یعنی حویلی سے جانے پر دادا جی نے ہمارے لیے پابندی رکھی تھی؟ ان کی پوتیاں اتنا کچھ کر رہی ہیں، اب کہاں ہے دادا جی کی غیرت؟ اس نے کڑنے والے انداز میں کہا تو اس کی ماں نے اسے گھورا۔ تمیز سے بات کرو، دادا جی نے سن لیا نا تو بہت برا ہوگا۔ انہوں نے شہباز خان کے کان پکڑے۔ تمہیں ویسے کیوں غم ہے ان کے پڑھ لکھ جانے کا؟ تم کسی سے کم ہو گیا؟ میں بہو ڈھونڈ رہی ہوں، تمہارے چھوٹے بھائی کی منگنی ہو گئی ہے اور اب تم ہی ہو، سب سے بڑے بیٹے ہو، اس حویلی کے وارث ہو، تمہارے لیے تو چاند سی دلہن لاؤں گی۔ اس نے منہ بگاڑا۔ چاند میں گرہن لگتا ہے ماں جی، اور ابھی میں شادی نہیں کر رہا، پہلے مجھے دادا جی کو سمجھانے دے، مجھے حویلی میں نہیں رہنا، اس نے جاتے ہوئے کہا۔ اس کی ماں نے پشت کو گھورا۔ وہ حویلی سے بھاگنے کے لیے پر تول رہا تھا اور دادا جی اس کے لیے کچھ اور ہی سوچے بیٹھے تھے۔ گلے رانا، گلے نشین اور گل مہر تینوں حویلی میں کام کروانے میں مصروف تھی۔ طیب میر خان کی فیملی بھی حویلی پہنچ گئی تھی اور کاموں میں مصروف تھی۔ حویلی کو بنے 50 سال ہونے والے تھے، جس کے سبب یہ بڑی دعوت رکھی گئی تھی۔ سہراب میر خان نے پہلی بار اپنے سارے بچوں کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا تھا۔ قندیل جیسی اپنے گھر پہنچی، صادق خان نے بھی گاؤں کے لیے نکلنے کی جلدی مچائی۔ وہ سب گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ ثنا نے تمیز کے دائرے میں شلوار قمیض پہن رکھا تھا، جبکہ قندیل نے پینٹ پر ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کے لیے وہی آرام دہ لباس تھا۔ اس کی ماں نے سمجھایا بھی تھا کہ حویلی والے برا مانیں گے، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ وہ بہت لمبے سفر کے بعد حویلی پہنچے تھے۔ سب ایک دوسرے سے ملتے ہوئے رو پڑے تھے۔ قندیل ایک جانب کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ شہباز خان کے ماتھے پر بل نمودار ہو رہے تھے۔ حویلی کے لڑکے اسے بڑے شوق سے دیکھ رہے تھے، جس کا اسے رتی برابر فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ بابا جی نے اس سے مل کر برا منایا تھا کہ انگریزوں کے ملک میں رہتے ہوئے انگریز ہی بن گئی ہے۔ قندیل نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ تینوں لڑکیوں کے ساتھ کھڑی باتیں بکھار رہی تھی۔ کھڑکی سے پورا گاؤں نظر آ رہا تھا۔ جب شہباز خان حویلی میں داخل ہوا، قندیل کے ہاتھ سے گملہ سلپ ہوا اور سیدھا شہباز خان کے پاؤں کے پاس جا گرا۔ اندھی ہو، دکھائی نہیں دے رہا؟ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ آپ کو بھی اسی وقت آنا تھا؟ اس نے الٹا شہباز خان کو جھاڑ پلا دی۔ تینوں لڑکیاں منہ پر ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپی؟
ये यहाँ के सबसे बड़े पोते हैं, दादाजी के लखते जिगर। अगर इनको कुछ भी कहा तो दादाजी से बहुत डांट पड़ेगी। गुलमहर ने इसे बताया। वो सुनने वालों में से कब थी? हवेली के उसूल हवेली वालों पर चलते हैं। मैं यहाँ की नहीं हूँ और इस बेलगाम घोड़े को मुझे लगाम देना आती है, उसने ऊंची आवाज से कहा था। शहबाज मीर खान के माथे पर अनगिनत बल पड़ गए। वो जैसे ही ऊपर आया वो तीनों 9-2-11 हो गई। सिर्फ कंदील वहां खड़ी उसे घूर रही थी। उसका लंबा ऊंचा कद, ऊपर से इतना सेहतमंद। कंदील ने थूक निकला। वो उसे अंगारा होती आंखों से देख रहा था। क्या कह रही थी? बेलगाम घोड़ा? उसने कंदील की कलाई पकड़कर अपने सीने से लगाकर पूछा। वो उसकी सख्त गिरफ्त में तड़प गई। छोड़े मुझे, वरना शोर मचाकर हवेली वालों को इकट्ठा कर लूंगी। यह है आप लोगों की मेहमान नवाजी, उसने गुस्से से कहा। तो शहबाज खान ने उसे झटके से छोड़ा और वो दूर हुई। आइंदा मुझसे तमीज़ से बात करना और मेरे लिए कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल मत करना जिसको सुनने के बाद मेरा दिल करे कि मैं तुम्हें अपने हाथों से। वो अभी कहता कि कंदील ने उसके मुंह पर पानी का गिलास फेंक दिया। तमीज़ की ज़रूरत तुम्हें है। औरतों के साथ तमीज़ से बात करना तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया। आइंदा मुझसे तमीज़ से बात करना। मैं तुम्हारी हवेली की औरतों की तरह जाहिल नहीं हूँ, उसने गुस्से से शहबाज खान से कहा। तो उसका चेहरा सुर्ख होने लगा। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा दिया है। जितने दिन यहाँ हो कोशिश करना मेरे सामने ना आओ, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी कज़न हो और इस हवेली की मेहमान। उसने माथे पर त्योरी डाल कहा और वहाँ से निकल गया। पीछे कंदील पेचोताप खाकर रह गई। उसे शहबाज खान एक आंख नहीं भाया था। दूसरी सुबह ही कंदील ने वापस घर जाने की रट लगा ली थी। दादा जान और बाकी सब ने उसे बहुत समझाया था, लेकिन वो मान कर ही नहीं दे रही थी। मेरी वजह से जा रही हो? वो बालकनी में खड़ी थी जब शहबाज खान वहां चला आया। आपकी खुशफहमी है, उसने सर झटका। अगर मेरी खुशफहमी है तो फिर यहाँ से जाने की बात मत करना। अगर इतनी ही बहादुर हो तो मेरा मुकाबला करो, उसने संजीदगी से इसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो सीने पर बाजू बांधे उसे देखने लगी। हवेली में इस तरह के कपड़े पहनकर मर्दों को मुतवज्जो मत करो, ज़्यादा बेहतर है। उसने एक नज़र इसके लिबास पर डाली और कहते साथ ही आगे बढ़ गया। मेरी मर्जी, मैं जो भी पहनूं, उसने गुस्से से शहबाज खान को पीछे से कहा। हवेली वाले वाकई जाहिल हैं, उसने अफसोस से सोचा। तुमने मैट्रिक भी नहीं किया? वो हैरत से मुंह खोले मेहर की बात सुन रही थी, जिसने बस 5 क्लास पढ़ रखी थी। वो बहुत फख्र से उसे 5 क्लास का पास करने का बता रही थी जब कंदील ने उसे हैरत से पूछा। दादाजी को लड़कियों का पढ़ना नहीं पसंद, उसने मुंह फुलाकर बताया। हम जिस सदी में रह रहे हैं ना, इसमें लड़कियों का ही पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है ताकि वो अपने आप को पहचान सकें। और हमारे मज़हब में भी तो हर मर्द औरत पर तालीम फ़र्ज है। सना ने कंदील को आंखों से इशारा करते खुद बात शुरू की, वरना वो दादाजी की शान में कसीदे शुरू करने वाली थी। अब दादाजी को कौन समझाए? आप नहीं जानती हमें क्या क्या देखना पड़ता है। शहबाज खान भी दादाजी के परतों हैं, हर चीज़ में उन्हीं का कहना मानते हैं, गुलनशीन ने अफसोस से बताया। तुम तीनों को कहना चाहिए शहर भेजें, पढ़ाएं, कंदील ने सर्द लहजे में कहा। गुलमहर दानियाल खान की मांग है, अचानक गुलनशीन ने बताया। वो दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगी। यहाँ तो बस यही सब चलता है, कंदील ने उठते हुए कहा। आपकी शादी क्यों नहीं हुई अभी तक? हम तीनों की शादी इस उम्र तक हो जाएगी, गुलराना ने पूछा। सना हंस पड़ी। मेरी अपनी पसंद से शादी होगी, जिससे शादी होगी वो अमेरिका गया हुआ है। जब वो वापस आएगा हम शादी कर लेंगे, सना ने मुस्कुराकर बताया। वो भी आपकी तरह डॉक्टर हैं? गुलराना ने इश्तियाक से पूछा। जी हाँ, वो सर्जन है, उसने मुस्कुराकर बताया। उन्हें समझ न आया कि वो क्या है, बस ये मालूम हो गया था कि वो भी डॉक्टर है। आप किससे शादी करेंगी? गुलमहर ने कंदील से पूछा, जो अपने मोबाइल में मसरूफ़ थी। लड़के से, उसकी बात सुनकर सब लड़कियां हंस पड़ी। गांव के लोगों से सुबह से ही हवेली भरी हुई थी। मिलाद के बाद दोपहर का खाना खिलाया गया था।
फिर शाम की दावत अलग से रखी गई थी। कंदील सफ़ेद रंग का शलवार सूट पहने महफिल की जान लग रही थी। शहबाज खान से उसका 3 बार सामना हुआ था। उसने तीनों बार इसे घूरा था, जबकि वो इस रंगो रूप में उसे देखता रह गया था। सब रात देर से फ्री हुए। कंदील विलियम की कॉल्स नहीं ले पाई थी। वो गुस्सा था, इसी वजह से वो छत पर चली आई थी कि अभी नीचे ना जाने कौन लोग बैठे थे। वो वीडियो कॉल पर बातों में मसरूफ थी। आई रियली लव यू, वो उसे देखकर कह रहा था। आई मिस यू कंदील, वो उदासी से बता रहा था। जब तुम वापस आओगी तो यहाँ मेरे घर रुकना। उसने आज एक अलग सी फरमाइश की थी। कंदील उससे पहले कुछ कहती, किसी ने तेजी से उसके हाथ से मोबाइल खींच लिया। कंदील हैरत से पीछे पलटी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा मोबाइल लेने की? उसने गुस्से से पूछा तो शहबाज ने उसकी कलाई मोड़कर उसे पास कर लिया। किससे बात कर रही हो? वो भी छुपकर? उसने गुस्से से सुर्ख नज़रों से पूछा। तुम्हें इससे मतलब? उसने गुस्से से जवाब दिया और उसके हाथ से मोबाइल छीनकर जाने लगी, जब शहबाज खान ने उसकी कलाई थाम ली। तुम किसी अंग्रेज से मोहब्बत कर रही हो और हवेली वालों को खबर तक नहीं, इसीलिए गई थी बाहर? शहबाज खान ने उससे पूछा तो कंदील को गुस्सा आया। उसने इंग्लिश में इसे खूब गालियां दी। मैं पूछ रहा हूं वो अंग्रेज कौन था? वो गुस्से से कंदील का मुंह हाथ में दबा गया। मेरा बाप बनने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड है। उसने शहबाज खान को मज़ीद तैश दिलाने के लिए कहा था, वरना वो उसे हमेशा मना करती आई थी कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। मुझे ये लफ्ज़ गाली लगता है। तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। उसने कंदील को अपने साथ घसीटा। वो दूसरे रास्ते से दादाजी के कमरे में ले आया। उसने सब बड़ों को वहाँ बुलवाया। कंदील उसके हाथ से अपनी कलाई छुड़वाने में मसरूफ़ थी। ये क्या हो रहा है? छोड़ो मेरी बेटी का हाथ, सादिक खान ने गुस्से से कहा। आपकी लाडली एक अंग्रेज़ के साथ चक्कर चला रही है, उससे शादी करने वाली है। वो इसके मज़हब का भी नहीं है, इसलिए आपने अपनी बेटियों को आज़ादी दी है कि बाहर आवारा गर्दी करें। ये लड़की उसके साथ रात। वो भी मज़ीद कुछ कहता, कंदील ने उसके मुंह पर हाथ उठा दिया और वो बेयकीनी से उसकी जुर्रत देखने लगा। सब मर्दों के सामने ही उसने शहबाज खान पर हाथ उठाया था। इस लड़की से मेरा निकाह करवाएं दादाजी, वरना भूल जाएं कि मैं सारी ज़िंदगी शादी करूंगा। उसने गुस्से से कंदील की कलाई को मज़ीद दबाया और दादाजी को मुखातिब किया, जो सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। कंदील इसीलिए बाहर गई थी? दादाजी गुस्से से चिल्लाए। ये सब झूठ है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। उन्होंने तर्दीद की। कंदील, कह दो तुम उस लड़के को नहीं जानती, वो बस तुम्हारा दोस्त है। उसने नफ़ी में सर हिलाया। मैं उसे जानती हूँ और उसके साथ। वो भी मज़ीद कुछ कहती, शहबाज खान ने उसकी कलाई मरोड़ी। आगे एक लफ्ज़ मत बोलना। दादाजी, आज ही निकाह होगा और अभी इसी वक्त, वरना भूल जाइएगा कि आपका पोता शहबाज नाम का भी कोई था। उसने सख्ती से कहा। सादिक, वक्त नहीं है, इस लड़की ने हमारे मुंह पर कालक मल दी है। इसका निकाह करो, वरना किसी को मालूम हुआ तो बहुत बदनामी हो जाएगी। दादाजी ने फौरन से कहा। मेरी कंदील ऐसी नहीं है, उन्होंने नम आंखों से कहा। सादिक, अगर तुमने अपनी बेटी मेरे पोते के नाम ना की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। सादिक खान के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो नफ़ी में सर हिलाने लगे, लेकिन दोनों बाप बेटी की एक ना चली और कंदील का निकाह शहबाज खान से करवा दिया गया। वो रोती रही। सना ने अपनी बहन का साथ दिया, लेकिन यह नाकाफ़ी था। सादिक खान का भरोसा अचानक से कंदील पर से उठ चुका था। उस रात वो रोते रोते ख़त्म हो जाती, लेकिन उसने एक फ़ैसला कर लिया था। उसे मालूम था आगे क्या करना है। वो इस जाहिल पागल आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रहेगी। उसी रात 3 बजे वो हवेली से भाग गई थी। उसे नहीं मालूम था कि जाना कहाँ है, लेकिन बस उसे वहाँ नहीं रहना था। अपने पास से बातें बनाकर शहबाज खान ने उसे निकाह कर लिया था। वो भी उन लोगों को ख्वार करवाएगी, जलील कर देगी। वो बिना सोचे समझे वहाँ से निकल पड़ी थी। यहाँ सब रोते थे, शहबाज लाला की मंगनी नहीं हो रही, वहाँ वो रात के अंधेरों में निकाह कर चुके हैं। गुल राना ने तासुफ से कहा। सना गुस्से से भरी बैठी थी।
मेरी बहन के साथ गलत हुआ है, उसने गुस्से से कहा। शहबाज खान के सामने उन्हें बात करने की ज़रूरत ही क्या थी, वो अना का मसला बना लेते हैं। गुलमहर ने जवाब दिया, अना वो वहाँ लड़कों के साथ क्लास में होती है, असाइनमेंट होते हैं, वो उसके क्लास फेलोज़ हैं, और उस पर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाकर उससे निकाह कर लिया। अगर इतनी ही बुरी थी मेरी बहन तो उसे निकाह करने की ज़रूरत क्या थी, उसने गुस्से से कहा। तो गुले राना और गुलमहर ने सर झुका दिया। वह हवेली के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती थी। आपी, यहाँ ऐसे ही होता है, गुलनशीन ने फौरन कहा। होता होगा, लेकिन हम इस हवेली के नहीं हैं, उसने सख्ती से कहा। यहाँ का खून हो और इस हवेली से ताल्लुक़ भी है। तुम दोनों बहनें अपने आप को न जाने क्या समझती हो, शहबाज खान ने सुनकर जवाब दिया। गुले राना, मेरी बीवी को बुलाकर लाओ ज़रा, दीदार तो करूं, उसने मुस्कुराकर कहा। गुले राना वहाँ से निकल पड़ी, लेकिन कुछ मिनट बाद वापस भी आ गई। कंदील आपी कमरे में नहीं है, उसने घबरा कर कहा। कहाँ गई है? हवेली में ही होगी, सब जगह ध्यान से देखो। शहबाज खान के माथे पर बल पड़े। वो भी फौरन उसे देखने के लिए भागा। सना को यकीन था वो अब नहीं मिलेगी। वो बहुत जज्बाती थी और उसकी इजाज़त के बिना उसका निकाह एक अनपढ़ से कर दिया गया था। वो बदला लेना जानती थी। कहाँ जा सकती है? दादाजी ने सादिक खान से पूछा। वो इसी जगह होगी जहाँ हम उस तक ना पहुँच सकें, सादिक खान ने जवाब दिया। शहबाज खान गुस्से से पागल हो रहा था। उसने कंदील की तलाश में आदमी लगा दिए थे, लेकिन उसका सुबह से रात तक कहीं मालूम ना हो सका था। ना किसी ने लड़की को गांव से बाहर जाते देखा था, ना कंदील को कहीं और देखा गया था। शहबाज पागल बना बिना कुछ खाए पिए उसे ढूंढ रहा था। रात बिस्तर पर लेटा तो अजीब से ख्याल उसके जहन में गर्दिश करने लगे। कहीं वो उस अंग्रेज़ के साथ ना भाग गई हो। वो कहाँ गई होगी? क्या वो ठीक होगी? शहबाज खान को लगा वो आज रात सो नहीं पाएगा। इस वजह से वो दोबारा से उसकी तलाश में निकल पड़ा। इस छोटी सी ब्रेक के लिए बहुत माजरत। उम्मीद है आप हमारी मजबूरी को समझेंगे, लेकिन कहानी कैसी है ये बताइए। क्या आप कंदील वापस मिल पाएगी, या फिर वो लंदन चली जाएगी और शहबाज खान हाथ मलता रह जाएगा? लेकिन अब उनके निकाह का क्या होगा? ये सब तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा कि कहानी का अंजाम क्या होता है। तो चलिए अब चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की जानिब। 2 दिन गुजर गए थे और उसका कुछ मालूम ना हो सका था। शहबाज की आंखें सुर्ख हो रही थी। उसे ना खाने का होश था ना सोने का। वो मजनू बना उसकी तलाश में सरगर्दां था। सना ने उसे काफ़ी सुनाई थी। इस बार उसने चुप साध दी थी, जो कि गैर यकीनी थी। वो सामने वाले को खामोश करवाता था, इस बार खुद खामोश हो गया था। सादिक की फैमिली वापस शहर आ गई थी। वो सब उसे वहाँ ढूंढ रहे थे। सना हॉस्पिटल भी जाती तो रास्ते में उसे ढूंढते हुए जाती थी। पूरे हफ्ते की कोशिश के बावजूद भी वो किसी को सुनाई तो क्या दिखाई भी नहीं दी। जमीन खा गई थी या आसमान निकल गया था। वह हवेली से निकलकर सीधा एक अपार्टमेंट की जानिब आई थी। उसने अपार्टमेंट रेंट पर लिया। गांव से निकलकर अब शहर में थी। उसने फ़ोन नया ख़रीद लिया था और सिम कार्ड भी दूसरा इस्तेमाल कर रही थी ताकि उस तक कोई पहुंच ना सके। कंदील वापस लंदन जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास टिकट के पैसे कम पड़ रहे थे, जिसके सबब उसने राब्ता करने का सोचा था। लेकिन फिर वो सब उस तक पहुंच जाते, इसीलिए वो किसी गैर से मदद लेने का सोच रही थी, जैसे कि विलियम। आज वो रेस्टोरेंट में बैठी डिनर कर रही थी जब उसका मोबाइल बजा। अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। अभी तक उसने पाकिस्तान में किसी को कॉल नहीं की थी। भला उसके मोबाइल पर यहाँ से कैसे कॉल आ सकती थी? उसने बेचैनी से फ़ोन उठाया। हेलो, आप कौन बात कर रहे हैं? वो जल्दबाजी में फ़ोन उठाती मुकाबिल से पूछने लगी। ये नंबर किसी के पास नहीं था, लेकिन मुकाबिल की आवाज़ सुनकर कंदील अंदर से कांप उठी। आपका शौहर शहबाज खान अपनी ज़ौजा मोहतरमा से बात करना चाहता है, वो पुरशौक लहजे में बोला। उसके होंठों पर गहरी दिलचस्प मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो सामने ही रेस्टोरेंट में अकेली टेबल पर बैठी थी।
जिसे वो 1 हफ्ते से पागलों की तरह ढूंढ रहा था। निकाह होते ही वो भाग गई थी। सॉरी, रॉन्ग नंबर। वो खौफ से फ़ोन ही बंद कर गई। चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। वो तेज़ी से वहाँ से भागी थी कि सामने से आते मजबूत वजूद से टकराई। उससे पहले कि वो गिरती, कंदील को मजबूत हाथों ने थाम लिया। कंदील ने गर्दन उठाकर उसे देखा तो शहबाज खान था, जिसकी वजह से इसकी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई थी। अगर सैर सपाटे ख़त्म हो गए हैं तो घर चलें, या सबके सामने गोद में उठाकर रुखसती करवानी पड़ेगी? उसने शोख लहजे में पूछा। आज से पहले शहबाज का ऐसा लहजा कभी नहीं था। उसे उसूलन गुस्से में होना चाहिए था, जैसे वो हमेशा रहता था। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। उसने झटके से हाथ छोड़ा और दरवाजे की तरफ भागी। ये लड़की भागती बहुत है। शहबाज खान उसके पीछे कदम उठाने लगा। उसने कंदील को कमर से पकड़ा और उठाकर गाड़ी में डाला। सीट बेल्ट पहनाई और जन से गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो शहर में थी, इस वजह से वो उसे लिए अपने चचा के घर पहुंचा। उसे देखकर सबकी जान में जान आ गई। सब उसे प्यार कर रहे थे। अगर आप लोग चाहते हैं मैं दोबारा ना भागूं तो इससे कहें कि मुझे तलाक दे। उसने गुस्से से शहबाज खान की जानिब उंगली उठाकर कहा। सादिक मीर ने हैरत से उसकी बात सुनी। कंदील, सना भी उसके पास आई। अगली माह रुखसती है, तैयारी कर लें, वरना मैं इसे उठाकर ले जाऊंगा। शराफत से यहाँ ले आया था, उसने गुस्से से कहा और चलता बना। उसकी शोखी कंदील की बात सुनकर गायब हो गई थी। वो उसे पीछे से गालियां दे रही थी। वो कमरे में लेटी हुई थी जब शहबाज खान की कॉल आई। मर्द के बच्चे हो तो मुझे अपनी डिग्री मुकम्मल करने दो, उसने गुस्से से कहा। मैं तुम्हें अकेले वहां नहीं छोड़ सकता, उसने सीधे अल्फाज में बता दिया। 2 साल से वहां हूं और तुम मुझे कल मिले हो। मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश मत करो। मुझे मेरी पढ़ाई मुकम्मल करने दो, वरना याद रखना रुखसती से पहले मेरे जनाजे में शिरकत करनी पड़ेगी, उसने कहा और खट से फ़ोन बंद कर दिया। वो दूसरी जानिब पागल होने लगा। वो कुछ भी कर गुजरती थी और सोचती भी नहीं थी। वो सर हाथों में गिराए सोच रहा था अब क्या करे। अगर उसकी बात ना मानी तो वो कुछ भी कर जाएगी, अगर मान ली तो उसका क्या। वो सोच में पड़ा हुआ था जब उसकी माँ कमरे में दाखिल हुई। तुम्हें कोई और नहीं मिला था? कंदील से निकाह करना ज़रूरी था? वो जो भी करती है हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी माँ ने सख्त लहजे में इसे समझाया या डांटा, उसे समझ ना आई। वो माऊफ जहन के साथ उन्हें देख रहा था। अब निकाह कर ही लिया है तो रुखसती भी करा लो। आए दिन के ड्रामे नहीं देखूंगी मैं। बच्चे हो जाएंगे तो खुद ही सुधर जाएगी, लंदन का भूत भी उतर जाएगा। वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। मैंने कुछ सोचा है, उसने अचानक जवाब दिया। क्या? उसकी माँ ने हैरत से इस्तफसार किया। वो 2 साल के लिए पढ़ाई मुकम्मल करने जाएगी और फिर जब वापस आएगी मैं उसे रुखसत करवा लूँगा, उसने इत्मीनान से कहा। पागल हो गए हो? पढ़ाई? उसका निकाह हो गया है, अब भी पढ़ाई? ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तुम उसे रुखसत करवा कर ला रहे हो और वो यहाँ तुम्हारे बच्चे पालेगी, उसकी माँ ने गुस्से से जताया। वो नहीं मानेगी। अगर ज़बरदस्ती की तो वो मज़ीद बागी हो जाएगी और फिर वो अपने साथ कुछ भी कर सकती है। इसलिए मैं वही करूँगा जिससे हम दोनों की ज़िंदगी में हम दोनों की अहमियत रहे, उसने कहा और उठ खड़ा हुआ। ये लड़का पागल हो गया है, उन्होंने दादाजी को बताने के लिए उनके कमरे की राह ली। दादाजी को जब तक मालूम हुआ देर हो चुकी थी। शहबाज खान शहर के लिए निकल चुका था। वो चचा के घर पहुंच चुका था। उसे देखते ही कंदील को 200 डिग्री बुखार चढ़ गया। तुम यहाँ फिर आ गए मुंह उठाकर? मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगी, उसने गुस्से से कहा। वो इस वक्त टी शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस थी। उसने सर ता पैर पहले इसे देखा। क्या हम तुम्हारे कमरे में चलकर बात कर सकते हैं? उसने नरमी से कहा तो वो उसे घूरने लगी। मुझे जाल में फंसाने के लिए जेंटलमैन बनने की ज़रूरत नहीं, अपनी वही जाहिल फितरत दिखाओ, उसने गुस्से से कहा और वो सर्द आ भर कर रह गया। कमरे में चलो, उसने कलाई थामी और उसके कमरे में चला आया। उसे बेड पर बिठाया।
تم لندن جا رہی ہو، اس نے اچانک سے کہا تو قندیل نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تمہارا کیا پلان ہے؟ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ تم 2 سال بعد جب آؤ گی رخصتی تب ہوگی، اس کے بعد تم میری بات مانو گی۔ منظور ہے تو بولو، ورنہ جیسے نکاح کیا تھا ویسے رخصتی بھی کر سکتا ہوں۔ تم کیا، کوئی بھی مجھے نہیں روک سکتا۔ اس نے غصے سے شہباز خان کو دیکھا۔ اس کی بات اس کے سر پر لگی تھی۔ لیکن میں یہ کر سکتی ہوں۔ اس نے چھری اٹھا کر اپنی کلائی پر رکھ لی تو شہباز خان کے ماتھے پر بل پڑے۔ بے وقوفی مت کرو اور مجھ سے لڑ کر جیت جاؤ، اس نے قندیل کو سینے سے لگا کر کہا تو وہ مزید غصہ ہونے لگی۔ مجھ سے دور رہو، تم نے نکاح اپنی مردانگی کے لیے کیا تھا۔ اس نے جھٹکے سے شہباز کو دور کیا۔ ولیم میرا دوست ہے، صرف دوست، اس نے غصے سے چیخ کر کہا۔ میں نے کبھی کسی مرد کے ساتھ رات نہیں گزاری۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو سارے گھر والوں کے سامنے؟ تم نے مجھے میری نظروں میں گرا دیا ہے، اس نے غصے سے کہا اور وہ سر جھکا گیا۔ میں اس بات کے لیے معذرت خواہ ہوں، مجھے تم پر یقین کرنا چاہیے تھا، اس نے افسردگی سے کہا۔ نہیں، تم میرے کچھ نہیں لگتے، اس لیے مت کرو یقین، اس نے غصے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ پلیز مجھے ایک موقع دے دو، اس نے ہلکی سی آواز سے کہا۔ 2 سال تک تم مجھے یہاں آنے پر فورس نہیں کرو گے؟ اس نے انگلی اٹھا کر پوچھا۔ بالکل نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم پڑھائی کرو گی، مجھے کسی جاہل سے شادی نہیں کرنی ہے، اس نے سختی سے کہا۔ شہباز خان کے لب مسکرا دیے۔ جی ضرور، اس کی مسکراہٹ پر قندیل کا دل دھڑکا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کتنا اچھا لگتا تھا، پہلی بار اس نے شہباز کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ پیکنگ کر لو، میں ایئرپورٹ چھوڑ آؤں گا، اس نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ 1 ہفتے میں ایسا کیا بدلا تھا؟ شہباز خان نرم مزاج کیسے ہو گیا تھا؟ وہ مختلف سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کی ٹکٹ شہباز نے کروا دیے تھے، اس کا آلریڈی لاس ہو چکا تھا۔ وہ جلد از جلد یونی جانا چاہتی تھی اور اگلے ہی دن کی فلائٹ لے لی تھی۔ جاتے ہوئے شہباز خان نے اسے نرمی سے گلے سے لگایا۔ وہ حیران بھی تھی کہ نہ کچھ سمجھ آ رہا تھا نہ پلے پڑ رہا تھا کہ وہ اچانک یہ سب کیوں کر رہا تھا، کیا مقصد تھا اس کا۔ وہ بنا کچھ سمجھے چلی آئی تھی۔ ہر دفعہ کا پاکستان جانا اور اس بار کا پاکستان جانا، اس میں کافی فرق تھا۔ قندیل کی زندگی بدل گئی تھی۔ وہ ولیم سے فاصلے پر رہتی تھی۔ وہ اصرار کر رہا تھا کہ قندیل اس کے گھر آئے اور وہ ہر دفعہ منع کر دیتی تھی۔ اگر نکاح نہ بھی ہوا ہوتا تو وہ کبھی نہ جاتی، لیکن اس دفعہ شہباز خان کی پرچھائی اس کی زندگی پر چھا گئی تھی۔ اس نے لندن جانے کے بعد اس سے بات نہیں کی تھی اور نہ ہی شہباز خان نے اسے کوئی کال کی تھی، ورنہ اس کے ملنے کے بعد سے شہباز اسے کال کرتا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ قندیل ریسیو نہیں کرتی تھی۔ وہ موبائل لیے بیٹھی شہباز خان کے نمبر کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اچانک یاد آیا، اس دن اس نے کال کیسے کی تھی؟ اس کا نمبر نیا تھا اور کسی کو بھی علم نہیں تھا، تو اسے کیسے علم ہوا؟ وہ اس کے پیچھے تھا، وہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھا، وہ کیا کر رہا تھا؟ اس کی سمجھ سے یہ سوال بالا تر ہوتے جا رہے تھے۔ اسے آئے 2 ماہ ہو گئے تھے، سیمسٹر ختم ہو چکے تھے اور اس کی چھٹیاں چل رہی تھیں، لیکن وہ پاکستان نہیں گئی تھی۔ اسے خوف آتا تھا کہیں شہباز اس سے رخصتی کا مطالبہ نہ کر دے۔ وہ اسی خوف کی وجہ سے لندن میں ہی دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہی تھی۔ گھر والوں سے بات ہوتی، وہ نہیں بتاتے تھے شہباز کے بارے میں، اور خود سے پوچھنا اسے عجیب سا لگتا تھا۔ ثنا کا منگیتر امریکہ سے واپس آ رہا تھا اور قندیل کو ثنا کی شادی میں لازمی جانا تھا۔ وہ پریشان تھی کہیں شہباز اس سے رخصتی کا مطالبہ نہ کر دے۔ جیسے شادی کی تاریخ طے پائی، ثنا نے اسے آنے کا حکم دیا۔ وہ نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن اس کی اکلوتی بہن کی شادی تھی، اسی لیے کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب وہ پھر سے پاکستان جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ جب پاکستان آئی، حویلی والے اس کے گھر پر ہی موجود تھے۔ شہباز خان کہیں نہیں تھا۔ اس کی نظریں اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ گل مہر نے بتایا کہ وہ کافی دن بعد حویلی آتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ اس کی بہن کی مایوں تھی
और वो उस दिन भी नहीं आया था। कंदील की नज़रें उसको ढूंढ रही थी। मैं महफिल का हिस्सा बनी हुई थी जब उसके मोबाइल पर मैसेज आया, अगर इंतज़ार कर रही हो तो मैं आ सकता हूँ। उसने इर्द गिर्द देखा लेकिन वो कहीं नहीं था। फिर वो कैसे जानता था कि वो इसका इंतज़ार कर रही है? सिर्फ एक मैसेज का जवाब करोगी तो मैं वहाँ आ जाऊँगा। उसने दोबारा मैसेज किया तो वो हैरत में मुब्तला हो गई। उसने जवाब भेजा, तुम्हारी इकलौती साली की शादी है, तुम्हें आना चाहिए। सब बाबा से पूछ रहे हैं कि छोटी बेटी का मियाँ कहाँ है। जब निकाह किया था तब बताना था ना कि बेइज्जत करवाने में माहिर हो। उसकी जली कटी बातें सुनकर शहबाज खान हंस पड़ा और वो अगले ही दिन की रस्म में मौजूद था। तुम ठीक हो? कंदील ने उसके पास आते हुए पूछा तो उसका चेहरा पीला पड़ा था। बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें देखकर मज़ीद ठीक हो गया हूँ। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? उसने मुस्कुराकर पूछा। अच्छी जा रही है, बस 1 साल कुछ महीने हैं फिर ख़त्म। उसने गहरी सांस लेकर बताया। मैं चाहता हूँ तुम उसके बाद वहीं जॉब स्टार्ट कर लेना। और उसकी बात सुनकर कंदील को झटका लगा। खैरियत है? पहले मेरी पढ़ाई और दूसरे मुल्क रहने पर एतराज़ था, अब जॉब करने की इजाज़त? वो हैरत से पूछ रही थी। बस इंसान को बदलना चाहिए, उसने मुस्कुराकर कहा। उसके पास कॉल आने लगी तो वो वहाँ से हट गया। कंदील को महसूस हुआ कि जैसे शहबाज कुछ छुपा रहा है। वो उसके पीछे चली आई थी। ऑपरेशन से क्या गारंटी है कि मैं बच जाऊंगा? उसने गुस्से से किसी से पूछा था। बात समझो, 50% का मतलब है आधी जिंदगी आधी मौत। मैं रिस्क क्यों लूं? जब तक जिंदगी चल रही है चलने दो। घर वालों को मालूम हुआ तो बहुत बुरा होगा। उसने इतना कहकर पीछे देखा तो कंदील आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। उसने कॉल बंद कर दी, वहां से जाने लगा, लेकिन कंदील ने उसका हाथ थाम लिया। क्या बीमारी है तुम्हें? उसने हिचकी लेते हुए पूछा। कोई बीमारी नहीं है, उसने एतमाद से जवाब दिया। वो उसे लिए वहां से निकलती अपने कमरे में आ गई। जब 2 लोग अकेले हों तो मालूम है क्या हो सकता है, और उनके दरमियान निकाह भी हो। वो शोख लहजे में पूछ रहा था। बताओ मुझे, क्या हुआ है तुम्हें? वो नरमी से पूछ रही थी। उसके हाथ पर हाथ रख दिया था। हार्ट सर्जरी होनी है, 20% चांस है बच जाऊं, उसने मुस्कुराकर बताया। तुम्हें कब मालूम हुआ? उसने नम आवाज से पूछा। जब हमारा निकाह हुआ था उसके 3 दिन बाद। मुझे मालूम है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मैं जाहिल नहीं हूँ। मैं एजेंट हूँ, दादाजी से छुपकर बना हूँ। अगर उन्हें मालूम हो गया तो वो मुझे कभी जाने नहीं देते। मेरा बचपन का ख्वाब था। हवेली की लड़कियों के लिए लड़ ना सका कि उनके वालिदैन ही खिलाफ थे। तुम्हें विलियम से बात करते सुना और उसने तुम्हें जो कहा मैं पागल हो गया था। तुमसे मोहब्बत करने लगा था और नहीं चाहता था तुमसे दूर जाऊं। वो एतराफ़े मोहब्बत कर रहा था। कंदील ने सिसकी रोकी। तुम सर्जरी करवा रहे हो और यकीन रखो कामयाब होगी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम यहाँ से नहीं, अमेरिका, कनाडा, यूके, किसी दूसरे मुल्क से करवाएंगे। वो रोती हुई बोल रही थी। वो समझ गई थी कि मौत के डर ने उसे बदल दिया है। मेरी जितनी ज़िंदगी है मैं उतनी ही गुजारना चाहता हूँ। बेफिक्र रहो, रुखसती नहीं होगी। तुम्हारे मुझ जैसे इंसान के साथ रहकर। वो अभी मज़ीद कुछ कहता, कंदील ने उसके लबों को अकीदत से चूम लिया। वो हैरान होता उसे देखे गया। तुम सर्जरी करवा रहे हो, वरना मैं आज तुम्हें अपना आप देकर मजबूर कर दूंगी कि तुम जिंदा रहो। वो गुस्से से बोली तो शहबाज खान हंसने लगा। ऐसे कहोगी तो मैं अभी मर सकता हूँ। उसने नम आंखों से कंदील के माथे पर बोसा दिया। हम इसी हफ्ते जा रहे हैं, तुम्हारा यूके में ऑपरेशन होगा, उसने गुस्से से कहा। ओके बाबा, उसने हाथ खड़े कर दिए। उसके दिल के वॉल बंद थे और डॉक्टर जल्द अज जल्द सर्जरी का कह रहे थे। शहबाज खान राजी नहीं था, लेकिन अब कंदील ने उसे मना लिया था। कोई नहीं जानता था वो दोनों सना की शादी के बाद एक साथ क्यों गए थे। कंदील ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था।
हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे। यूं लग रहा था जैसे उसकी जान निकल रही हो, और वो मुसलसल कुछ ना कुछ पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते भूल जाती कि उसे क्या पढ़ना है। खौफ से दिल कांप रहा था। यही एक सवाल था, उसे कुछ हो गया तो? वो नहीं जानती थी कब, कहाँ, कैसे उसे शहबाज खान से मोहब्बत हुई थी, लेकिन अब वो उसे ज़िंदा देखना चाहती थी। उसने ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले शहबाज खान से वादा लिया था कि वो अपनी विल पावर इस्तेमाल करेगा, खुद को मरने नहीं देगा। वो कितनी ही देर उसके सीने से सर रख कर रोती रही थी। शहबाज खान को जहाँ अच्छा लगा था वहाँ उसको छोड़ जाने का डर शिद्दत से महसूस हुआ। वो रोती पीटती मुश्किल से खुद को सहारा दिए हुए थी। काफ़ी घंटों बाद डॉक्टर्स बाहर आए। मुबारक हो, आपके मरीज़ ख़तरे से बाहर हैं। ये सुनते ही वो ज़मीन पर बैठ गई, शुक्र का सजदा किया। शहबाज के जागने पर वो उससे मिलने आई। उसको देखकर आंसू पर काबू ना रख सकी। क्या तुम यहाँ रह सकते हो मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने तक? वो डर के मारे पूछ रही थी। बिल्कुल रह सकता हूँ, बॉस से पूछना होगा। वो मुस्कुरा दिया। वो उसका खौफ समझ रहा था। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। कंदील की बेसब्री बता रही थी कि आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। घर वालों को मालूम नहीं था कि वो दोनों एक साथ रह रहे हैं। एक दिन अचानक कंदील ने कह दिया, शहबाज उसके साथ है। दादाजी तक बात पहुंची तो शहबाज को खूब सुनाई और कहा, लड़का लड़की के साथ रुखसत हो गया? तो वो हंस पड़ा। उसने दादा और अपने चचा से इजाज़त ले ली थी कि वो कंदील की रुखसती चाहता है, और उन दोनों ने इजाज़त दे दी थी। उस रात उसने बताया था कि आज रुखसती पर मोहर लग गई है। कंदील उस रात खूबसूरती से तैयार हुई थी। शहबाज खान ने उसे इज़्ज़त और अकीदत से छुआ था कि कंदील को अपना आप मोतबर लगने लगा था। वो दोनों साथ थे, पास थे। छोटे बड़े इम्तिहान पास करके वो दोनों एक दूसरे के हो गए थे। हवेली में लोग बातें बनाते, लेकिन उन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कैसी लगी आपको कहानी? उम्मीद है आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।